So we are live on EcoSic Facebook now, as well as we are conducting workshop via Zoom with our forest maker. ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ EcoSic ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ EcoSic ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੈਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ DC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਸਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਕਰੋਨਾ BC। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DC ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਰਸ ਹਨ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਹਨ, EcoSic ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਸਨ ਜੀ ਆਪਣਾ आ के ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ गाइडलाइंस दें। जी सर। हसन जी प्लीज स्टार्ट करिए। सभी लोगों को मेरा नमस्ते। हसन जी थोड़ा सा मैं आपका एक इंट्रोडक्शन दे दूं। हसन जी जिन मैं दसिया कि इंडस्ट्री विच और बाकी काफी जगह पे कॉर्पोरेट्स विच काम करते हैं, टाटा विच और दूसरे केमिकल यूनिट्स हो गए, टेक्सटाइल ਦੇ यूनिट्स हो गए, फार्मा यूनिट्स हो गए, और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। এনवायरमेंट ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। प्लीज हसन जी, थैंक यू। थैंक यू सर जी। नमस्ते सभी लोग को मेरा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, इसमें से कुछ लोग मुझे पहचानते और कुछ जो लोग नहीं पहचानते। जस्ट एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन मेरा खुद का स्टार्ट करता हूँ। माय नेम इज हसन एंड आई एम वर्किंग एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट इन महाराष्ट्र एरिया। फिलहाल आई वर्क फॉर फ्यू ऑफ द कंपनीज, जैसे कि आशीष सर ने कहा कि ये टाटा स्टील्स हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया है, और बाकी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ये सब चीज़ों के लिए, ये सब कंपनियों के लिए मैं अपनी सेफ्टी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, प्लस सेफ्टी ट्रेनिंग्स ये सब प्रोवाइड करता हूँ। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे जो गैदर हुए, राइट, तो हम लोग मेन इसलिए गैदर हुए कि ये ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि अभी कैसे लाइफ को ना 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, एंड नाउ वी आर इन ड्यूरिंग कोरोना, DC, AC, BC एंड DC। फिलहाल मैं ये कोशिश करूंगा कि ये सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखूं और थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। जहाँ पे किसी को कुछ लग रहा है क्वेश्चंस, तो फिर वो भी अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी, it's already on. You have the rights to share. Yes. अब सभी लोग देख पा रहे हैं? जी 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 सर, दिख रहा है। थैंक यू सो मच। जैसे कि ये मेन सेशन ये है, सेफली ऑपरेटिंग इन पैंडेमिक सिचुएशन। फुल स्क्रीन हो पा रहा है? हाँ जी, फुल स्क्रीन है जी। थैंक यू सो मच।
मैं एक सेफ्टी कंसल्टेंट हूँ और जैसे कि मतलब मेरा एक्सपर्टीज ये हेल्थ एंड सेफ्टी में है। एक फर्म मेरे नाम से चलता है, नोबल एचएससी सॉल्यूशंस। तो इसके थ्रू मैं लोगों को सर्विसेज देता हूँ। तो नोबल एचएससी सॉल्यूशन का मेन मोटो क्या है कि हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सेफ्टी इज अ नोबल कॉज जॉब, कि जो हमें सभी लोग को एक नोबल कॉज के लिए ये काम करना चाहिए। जैसे कि हमारा इकोसिक ऑर्गेनाइजेशन ये भी यही कर रहा है, एक नोबल कॉज जॉब कर रहा है, जो हमारे पृथ्वी के लिए हम लोग प्लांटेशंस कर रहे हैं, फॉरेस्ट मेकिंग कर रहे हैं। तो सेम मेरा भी है नोबल एचएससी सॉल्यूशंस। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में देख पा रहे हैं, मेन हमारा फोकस यही रहेगा आज के डेट का कि पैंडेमिक सिचुएशन में हमें कैसे काम करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और इसको कैसे मिटिगेट करते रहना है। दीज आर अवर कंटेंट्स, लाइक ये सब चीजों पे हम लोग का फोकस रहेगा कि फिलहाल अभी कोविड के टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है, अभी भी कैसे कोविड इतना कंट्रोल में तो आ नहीं रहा, जैसे कि बाकी सभी गवर्नमेंट्स, बाकी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी है जो मतलब अभी लॉकडाउन सब बढ़ा रहे हैं। प्लस उनका मेन यही फोकस है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मेन हाइजीन पे फोकस करो, हाथ हमें कंटिन्यूअसली धोते रहना चाहिए, प्लस ट्रैवलिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये सब चीज़ों के कारण प्लस ये सब चीज़ों के कारण क्या आप लोग भी अपने इसमें देख सकते हैं कि आपके काम में जो वॉलेंटियर्स आ रहे हैं, कि जैसे कि हम एज ए इकोसिक हम लोग का भी अभी तक फुल फंक्शनिंग नहीं हुआ है प्लांटेशन के लिए। एम आई राइट? हमारा फुल जी सर, ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी तक। ना तो अभी ये हम स्टार्ट लोग, नहीं हुआ फुल। हाँ, तो यही सिचुएशन हम लोग ध्यान में रख के अभी जो आगे के टाइम में हमें प्लांटेशन का ये आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, तो वो टाइम पे हमें क्या चीजों पे फोकस करना है, ये आपको आगे के स्लाइड्स में दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग ने देखा ये फोटो जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा बिफोर कोविड, राइट? इजीली से बोलेंगे तो कोरोना, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना किसी को पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है, तो उस पर बात करके तो फिलहाल फायदा नहीं। बट ड्यूरिंग कोरोना, अभी जो हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में है ड्यूरिंग कोरोना, तो उस पर क्या क्या रहना चाहिए कि आप लोग ने ये सिंपल जो फोटो सेशंस हो रहे, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें 6 फीट मतलब 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है हर किसी से, और मास्क हमें कंटिन्यूअसली पहनते रहना है। अभी जैसे कि सभी जगह कहा जा रहा है, ये हमें मेन फोकस हेल्थ पे ही देना है। कोई बिना इमरजेंसी या बिना कोई रीजन के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो हो गया वो अपना रिलेटेड टू हमें कुछ फूड की जरूरत है, कुछ एक्सरसाइज हो रहा है या हेल्थ रिलेटेड है या फिर कुछ इमरजेंसी वर्क है, तो ही हमें बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर जब भी निकल रहे तो हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करना ही है। उसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा कि एक वल्नरेबल ग्रुप करके, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर। यस सर। हाँ, तो एक मेन इसमें हमें ये टाइम पे, कोविड के टाइम पे यही फोकस करना है कि हमें वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, मेन चीज। अभी वल्नरेबल ग्रुप मतलब क्या हो गया कि जैसे कि उसमें एजेड लोग आ जाते हैं, जैसे जो है 55 इयर्स, गवर्नमेंट क्या बोल रही है 60 प्लस इयर्स, वो वल्नरेबल ग्रुप है। तो हम एज ए सेफ्टी प्लस एज ए इकोसिक ये ट्राई करेंगे कि उसको और थोड़ा स्ट्रिंजेंट करें और 55 में ले ले। तो 55 एंड अबोव ये लोगों को बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए। प्लस हम लोग ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये सब बाहर ना आए या वो चीज फॉरेस्ट मेकिंग के लिए ना आए।
प्लस उसमें और एक आ गया ग्रुप कि प्रेग्नेंट लेडीज आ गए, फिजिकली चैलेंज्ड आ गए, किड्स आ गए। क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग भी ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में थे जहाँ पे पाल मियावाकी फॉरेस्ट हमने प्लांट किया है यहाँ पे। तो वहां पे क्या देखा जा रहा था कि वो टाइम पे सभी लोग को, जो प्लांटेशन एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों को अच्छी लगती है, तो इसमें कैसे एजेड लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, लेडीज, तो इसमें अभी ये टाइम पे फिलहाल ड्यूरिंग कोरोना हमें ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इनका रेजिस्टेंस पावर कम रहता है। जो वल्नरेबल ग्रुप हो गया उनका रेजिस्टेंस पावर कम रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, तो इसीलिए हमें ये फोकस करना है कि ये लोग ज्यादा लोगों के टच में ना आए। कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? जी सर, बिल्कुल। अभी तक सब साथ में हैं, हम ग्रास्प कर पा रहे हैं ये चीजें? जी सर, बिल्कुल। कैसे लगेगा ये जो हम लोग रोज डेली सीजन में देख रहे हैं, डेली टीवी में देख रहे हैं, डेली न्यूज मिल रहा है, सब सेम है, बट यही है कि कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ कैच पॉइंट्स है जो हम लोग आगे के स्लाइड में वो दिखाने वाले, जो हमारे एकदम वर्क रिलेटेड है। ये फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन ए जनरल बेसिक ट्रेनिंग फॉर कोविड के लिए। जी बिल्कुल जी। सिम्टम्स, मेन हेल्थ रूल्स में सबसे पहले जब भी कोई हम नॉर्मल अभी काम करने भी जा रहे, कहाँ पे भी जा रहे या तो मेन क्या रहता है, ये चीज रहेगा, हमें ये सिम्टम्स रहेंगे। इसमें क्या आ गया, हमारा कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये चीज रहेंगे तो हमें काम पे बिल्कुल नहीं जाना है। ये कैसे गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स है, प्लस ये अभी सभी लोग यही चीज फॉलो भी कर रहे हैं कि जहाँ पे बुखार आ रहा है, सर्दी आ रहा है, खांसी आ रहा है, तो मतलब काम पे नहीं जाना है, हमसे स्ट्रिक्टली घर पे रहना है या मेडिकेशन लेके उसके बाद ही मतलब कुछ काम चालू कर सकते हैं। हाइजीन स्टैंडर्ड्स दिखाया जा रहा है आपको, आप डेली रूटीन में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए, बट हैंड वॉश का भी एक तरीका रहता है जो 20 सेकेंड तक हमें करते रहना चाहिए अच्छे से। हैंड वॉश हमें फ्रीक्वेंट टाइम में करते रहना चाहिए, या 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे के अंदर हमें करते रहना चाहिए। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमें फॉलो करने चाहिए। जहाँ पे ऐसे लग रहा है कुछ कि मेरे काम में कुछ अड़चन आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली हमें वो काम उधर स्टॉप करके उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ के ही हमें वो काम चालू करना चाहिए। हसन सर, एक बात बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे सेशन चल रहा है, क्या हम अपने क्वेश्चंस लिखते जाएं कि हर स्लाइड के बाद जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कैसा करें? जी सर, लास्ट के हम 10 मिनट्स रखेंगे वो क्वेश्चन सेशन के लिए, या फिर आप लोग को कैसे कंफर्टेबल लग रहा है? आई थिंक लास्ट में ठीक रहेगा, लास्ट में ठीक रहेगा। हम क्वेश्चंस तो सभी जो भी फॉरेस्ट मेकर साडे नाल जुड़े ने, जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਪੈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ऑपरेशनल रिस्पॉन्स, अभी प्लांटेशन, अभी मेन हम लोग क्या आउटडोर एक्टिविटी पे फोकस करेंगे। जैसे कि आउटडोर में हम लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं। एक चीज होता है सेफ्टी का, एक बेसिक चीज होता है कि जॉब हैजार्ड एनालिसिस बोला जाता है जिसको, कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं प्लांटेशन करने जा रहा हूँ, तो वो जॉब में क्या क्या खतरे हैं हमें पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है, और प्लस उसको कैसे मिटिगेट करना है वो हमें देखना है। ठीक है, ये जॉब हैजार्ड एनालिसिस थोड़ा आप लोग समझ गए, ये कंसेप्ट आप लोग, मेन क्या है आपको कंसेप्ट समझना है। ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए तो आप लोग इसको और डिटेल में लेके ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के रखना चाहिए आपको हर काम के पहले। अभी फिलहाल ड्यूरिंग कोरोना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स भी हम इम्पोर्टेंटली रखें, ताकि कैसे हमें कभी भी कुछ प्लांटेशन करने जाना है कहाँ, तो वो टाइम पे कैसे हमें ये डॉक्यूमेंट एक बार रेफर कर लिया तो हमारे पास सभी चीजों का बैकग्राउंड रहेगा कि हाँ ये चीज में ये खतरा है करके।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट में जरा समझा देता हूँ, जॉब हैजार्ड एनालिसिस। इसमें कैसे मेरा काम है अभी प्लांटेशन का, ठीक है, तो ये कंसेप्ट में क्या है, एक काम को हमने एक बॉक्स समझा है, एक बॉक्स है, ठीक है, वो बॉक्स को हम लोग डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कर रहे हैं, मतलब एक काम को मैं 10 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ और 10 स्टेप को सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, फिर वो सीक्वेंस वाइज, उसके बाद वो सीक्वेंस हर स्टेप में, हर एक स्टेप में क्या खतरे हैं वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा काम लेंगे, पूरा प्लांटेशन करेंगे तो फिर वो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग हर स्टेप पे हर स्टेप पे हजार्ड आइडेंटिफाई करने लग गए तो उसका कंट्रोल मेजर्स इजीली मिल जाएगा, और वो किसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो मिटिगेट करने के लिए वो भी हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मेन अभी जो फॉरेस्ट मेकर है तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा जॉब हैजार्ड एनालिसिस का, तो उनको फिल करना है ये चीजें। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बनाया हूँ, या आप देख सकते कि अभी एक ग्रुप जारी है, अगर हमारी गलती से अभी ग्रुप जारी तो गैदर एट वन लोकेशन, ठीक है, तो फिर गैदर एट वन लोकेशन, उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मतलब उसमें खतरे क्या क्या है, कोई भी सरफेसेस आजू बाजू के, फिर और अपने वॉलेंटियर्स, ये खतरे हो गए। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया, उसको सेफगार्ड कैसे करना है, उसके कंट्रोल मेजर्स कैसे लेना है, तो उसमें क्या आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग आ गया, सैनिटाइजर्स हम प्रोवाइड कर रहे, फिर मिनिमम वॉलेंटियर्स रहने चाहिए, नो वल्नरेबल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। तो ऐसे करके एक ये डेटा आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब लोगों का हम लोग को टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल अभी ये टाइम पे जब पहला प्लांटेशन के लिए जा रहे तो फर्स्ट केस क्या है कि हमारे लोग वहां पे जाके प्लांटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग अभी इस बार गाइडेंस के लिए जा रहे हैं, दूसरे को गाइड करने के लिए। नहीं तो पहले क्या होता था, हम लोग जाते थे, हम लोग खुद ही हमारे हाथों से गड्ढा करेंगे, फिर प्लांट्स लगाएंगे, तो मतलब हमारा इकोसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है अभी कि मतलब हमारे लोग सभी सेफ रहे, बाकी लोग भी सेफ रहे, तो इसीलिए कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमें लोगों के संपर्क में नहीं आना, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमें उनको गाइड करते हुए आगे चलना है, क्योंकि कैसा है हमें ये पता नहीं कि कौन से उनके इक्विपमेंट में, कौन से टूल में क्या है, वो हमें कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए हमको ये ट्राई करना है कि हम लोग ये चीज अवॉइड कर सके। ठीक है जी। और प्लांटेशन जैसे कि हम सभी ग्रुप, जैसे कि पाल मियावाकी हो गया, इकोसिक हो गया, ये एक टेक्निक फॉलो करते हैं, मियावाकी टेक्निक। तो मियावाकी टेक्निक में क्या है कि वहां पे मियावाकी टेक्निक में है कि होल्स काफी नजदीक नजदीक रहता है, राइट, एम आई राइट? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। हाँ, होल्स काफी नजदीक नजदीक, एक एक फीट पे हम लोग ये करते, पिट किया जाता है। तो उसमें अभी जैसे कि पहले हम लोग देखते थे बिफोर कोरोना, वो टाइम पे क्या करते थे, हम सभी वॉलेंटियर्स एक के बाद एक नजदीक नजदीक में वो लगाते हुए जाते थे। तो हमें अभी ये मेंटेन करना है कि जो होल्स में हम लोग प्लांटेशन कर रहे तो वो नजदीक में नहीं रहना चाहिए, मतलब होल्स आपके नजदीक ही रहेंगे बट हमारे लोग नजदीक में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट हम लोग चेंज नहीं कर रहे, मियावाकी कंसेप्ट वही रहेगा, बट हमें कॉर्नर्स पकड़ना पड़ेगा, कॉर्नर में एक ग्रुप को करवाना पड़ेगा दूसरे कॉर्नर में, क्योंकि अगर स्क्वायर रहेगा तो हम लोग ये पकड़ सकते 4 कॉर्नर्स है। समझ पा रहे फॉरेस्ट मेकर्स, मेन इसमें आपको समझना है फॉरेस्ट मेकर्स। जी कहिए जी, कहिए। यस सर। हाँ, कि दूर दूर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बना लेना आप लोग, ग्रुप को डिवाइड कर देना 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, कि वो एरिया वहां पे से लगते हुए आएगी या ये कॉर्नर पे से लगते हुए आएगी, वैसे करना है हमें, ना कि एक ही पैच पकड़ के हम लोग 5 जन मिलके वहां पे लगा। सही है सर रिपीट कर दो फिर से, ये चीज जरूरी है।
जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं ये मियावाकी फॉरेस्ट में, मियावाकी फॉरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, 1-1 फीट की दूरी पे गड्ढे रहते हैं। जी जी, ठीक 2 है? फुट पे, हाँ जी, ये चलता है गड्ढे लगाने का। हाँ, तो गड्ढे, हमें वो गड्ढे को तो चेंज नहीं करना है, बट गड्ढे पे दूर दूर हमें पेड़ लगाना है, दूर दूर से चालू करना है हमें। सो जो लोग गड्ढे कर रहे हैं एक दूसरे से दूर रहें। दूर रहे, राइट। हाँ जी, मतलब एक को क्लस्टर दे दिया कि आप इस एरिया को अगर हम 5 में बांट दें या एक बड़े एरिया को बांट दें, एक एरिया किसी को दे दिया जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं या वॉलंटियर्स हैं, और दूसरा एरिया किसी को दे दिया कि यहाँ गड्ढे करते जाइए आप, ताकि वो Right. इकट्ठे मिल के नजदीकी ना हो उनकी। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। हमें ये हमेशा फोकस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रहते ही रहना चाहिए, चाहे वो गड्ढे करते समय हो या प्लांटेशन के टाइम। समझ गए सर? ठीक है। उसके बाद एक पार्ट ऐसे भी आता है कि चलो हम लोग पहले क्या करते थे कंटिन्यूअसली, क्योंकि प्लांटेशन एक ऐसा चीज है जिसमें एनर्जी लेवल हमारा इतना हाई रहता है कि हम लोग लगाते जाते थे, कंटिन्यूअस काम करते रहो, लगाते जाओ, प्लांटेशन करते जाओ। बट अभी हमें मेन फोकस ये करना है कि हमारा जो लीडर है, जो मतलब मेन हमें मॉनिटर कर रहा है, वो बंदा या हम जो मॉनिटर करेंगे आगे वाले जो लगा रहे पेड़, हमें मेन ये ध्यान रखना है कि उसे 1-1 घंटे में ब्रेक देना है, ब्रेक देना है उसे, मतलब हैंड वॉश करवाना है, उससे कंफर्मेशन लेना है कि उसने हैंड वॉश किया कि नहीं, वही सेम टाइम पे ब्रेक लेके हम लोग भी हैंड वॉश करके लेना। भले ही हम लोग किसी के टच में नहीं आ रहे वहां पे, फिर भी हमें वो हैंड वॉश करके लेना। वो ब्रेक्स में हर 1-1 घंटे में वो गाइडलाइन पे सेट कर ही लेना है हमें कि हम लोग को हैंड वॉश करके लेना है। जी सर। 1 आवर की फ्रीक्वेंसी में हैंड वॉश करना। उसके बाद जैसे कि टी ब्रेक्स आएगा, लंच ब्रेक आएगा, कि हमें हर टाइम पे मतलब ये भी इंश्योर करते रहना है कि मास्क लगा के रखना है। 3 चीज हमें ये कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ठीक है। फिलहाल फर्स्ट है सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग। सेकेंड है हैंड वॉश होते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली, और मास्क हर इसमें रहना चाहिए। मास्क के अलावा वो काम नहीं है। मास्क क्योंकि आपके लिए इसलिए भी अच्छा है ना कि वहां पे वो डस्ट रहेगा, ये सब रहेगा, मट्टी रहेगा, वो सब उड़ेगा, तो वो भी एक अवॉइड करते रहेगा। प्लस ये टाइम में ड्यूरिंग कोविड, तो ये टाइम में सबसे मेन चीज तो मास्क को ही माना जा रहा है। ठीक है। बट ऑब्वियसली आप लोग को मतलब टी और लंच के टाइम पे मास्क निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसके बिना तो वो होगा नहीं। बट फिर भी हमें जितना कम से कम मिनिमम टाइम एक्सपोजर वहां पे देना। आप लोग देखेंगे टी ब्रेक्स और लंच ब्रेक में जो हम लोग लिखे हैं, उसके सेफगार्ड में ये लिखा है हमने कि मिनिमम टाइम एक्सपोजर, कि जितना जल्द से जल्द हो गया वहां पे जाओ, टी हो गया, लंच हो गया, और फिर वहां से चले जाओ। वो टाइम पे वो करने से पहले हैंड वॉश, ये मेक श्योर करना है कि हैंड वॉश होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन रहना चाहिए, प्लस हैंड सैनिटाइजर्स यूज करो ये लंच होने के बाद, ये सब होने के बाद। ठीक है। एक ये रहता है प्लांटेशन के टाइम पे, एक ये भी रहता है कि फोटो सेशंस होते हैं, राइट। फोटो सेशंस पहले जो तरीके से होते थे एक्चुअल में वैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि कैसा है, अभी ये चीज मैं भी बहुत सर्च किया हूँ, कोई अभी तक एक एग्जाम्पल नहीं मिला है मुझे फोटो सेशन का जहाँ पे कि मतलब कोई स्नैपशॉट डाल पाए। बट हम लोग एज ए इकोसिक, हम लोग को ये एग्जाम्पल सेट करना है। आज के डेट में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये एग्जाम्पल बना पाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी प्लांटेशन होता है। जी बिल्कुल। फोटो सेशंस हम लोग दूर दूर खड़े रह के, प्लस हमारा इकोसिक का बैनर तो रहेगा ही, प्लस उसके अलावा हम लोग कुछ कुछ ऐसे पोस्टर्स भी लेके जाए जो मतलब हमें काम आए वहां पे, जैसे कि नो हैंडशेक्स या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, वैसे टाइप के कुछ कुछ हम लोग वो भी लेके जा सकते हैं। फिर जैसे ही हमारा प्रोग्राम हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो टाइम पे भी क्या करना है हमें, जैसे आते समय टेम्परेचर नोट किया गया था बंदे का, तो वही सेम चीज टेम्परेचर नोट करना चाहिए जाते समय भी।
ये टेम्परेचर क्यों नोट किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे डेटा के लिए सही है और उसका भी पता चल जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि उसे भी बुखार नहीं। टेम्परेचर सिर्फ हम बुखार के लिए, प्लस ये टेम्परेचर के साथ हमें एक और मतलब उनसे 2 सवाल ये भी पूछना चाहिए कि आपको सर्दी है क्या, खांसी है क्या। तो ये 3 से कंफर्म हो जाएगा कि उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है कोविड के, तो मतलब ही कैन स्टार्ट हिज वर्क और ही कैन गो टू हिज होम प्रॉपरली। सो जब भी वर्कर आ रहा है और जा रहा है, दोनों टाइम पे ये क्वेश्चन और उसका टेम्परेचर चेक दोनों टाइम होना चाहिए, जाते और आते दोनों। ये रिकॉर्ड हमें हमारे लिए रखना है मेन। जी ठीक है। आगे ये गवर्नमेंट भी ये सब डिमांड करेगी, बट ये हमारे लिए बेटर चीज है कि हम लोग वो हमारे बंदे के लिए हम लोग टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। अगर गलती से टेम्परेचर ज्यादा हुआ, क्योंकि कैसा है, उसीलिए मैंने पहले ही कहा था, प्लांटेशन एक ऐसा चीज है जो लोगों को बहुत एनर्जी लेवल देता है। बट कोई बुखार में भी आ रहा है और मुझे प्लांटेशन करना है, ऐसा भी होता है। तो वो टाइम पे कैसे, वो टेम्परेचर गन से हम लोग जब सेंस करके टेम्परेचर ले लिए और उसको उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, तो जैसा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, तो मतलब हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि भाई आपको नहीं आना चाहिए करके। अच्छा, 99 पे ही हम उसको कह सकते हैं? हाँ, 100 99 पे लेना 102 चाहिए। नहीं? नहीं सर, 100 पे से तो बुखार चालू हो जाता है, बट हम लोग कैसे और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने के लिए 99 डिग्री फ़ारेनहाइट लिए। सर हमारे यहाँ तो ऐसा भी बोला जा रहा है, सॉरी मैं इस टाइम ही हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत बात नहीं। रिलेटेड है, कि मैं कल अपने मिला था कजन से, उनकी फैक्ट्री है, हाँ तो सर। बाहर साइकिल से उनके जो वर्कर्स आते हैं, जब वो पहुंचते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है तो उनका हार्ट बीट और टेम्परेचर वैसे ही शरीर का तापमान बढ़ा रहता है, क्या ऐसा होता है सर? सर इतना वेरिएशन नहीं आता है। अच्छा जो ठीक है, हाँ, जो ये टेम्परेचर 90 सेम ही रहना चाहिए, 90 94.8 हाँ, 98.4, चाहे कोई साइकिल पे आए, जितना भी उसको पसीना हो, टेम्परेचर वही रहना चाहिए हाँ, उसका। टेम्परेचर उतना वेरी नहीं करेगा जो हिसाब से बोला जा रहा है, उतना वेरी नहीं करेगा। जी तो सर। 99 इज मतलब हम 100 पे फीवर कंसिडर किया जाता है। हम लोग मतलब थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, 99 से ही चालू कर देते हैं, क्योंकि कैसा ये टाइम पे जितना ज्यादा प्रिकॉशंस रहेगा उतने हमारे लोग भी बचे रहेंगे, प्लस हम लोग उतना ही अपने एक एज ए गुड सिटीजन हम लोग ये सब स्टेप्स ले रहे करके अपने लिए भी अच्छा रहेगा ये चीज। जी। और इसमें अभी नीचे नीचे देखा जाएगा तो ये रिक्वायर्ड पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। तो ये क्या क्या चीजें हमें आवश्यकता है वो करते समय, प्लांटेशन करते समय, तो क्या क्या है। पहला तो हो गया कॉटन मास्क हो गया, सेफ्टी गॉगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी गॉगल क्योंकि कैसा है, मेन प्रिकॉशन इसमें ये भी लिया जाता है कि हमें अपने आंखों पे, अपने नोज पे, अपने माउथ पे, कान पे, यहाँ पे हाथ लगाते नहीं रहना है। तो उस चीज के लिए कैसे गॉगल भी दे दिया जाता है, गॉगल भी रहना चाहिए, प्लस फेस शील्ड रहना चाहिए। फेस शील्ड कहीं कहीं पे फेस शील्ड से थोड़ा ज्यादा सफोकेशन टाइप होता है, तो उसीलिए हम लोग ये प्रीफर करेंगे कि ये प्लांट, क्योंकि हम लोग बाहर रहेंगे तो वो टाइम पे गॉगल भी काम करेगा हमारा। बट जितना ज्यादा प्रोटेक्शन उतना ज्यादा अच्छा है। तो फेस शील्ड, गॉगल्स, कॉटन मास्क, शूज रहने चाहिए। क्योंकि शूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैसे हमें खतरे और भी है, फॉरेस्ट लगाते समय हमें और भी खतरे मिलेंगे, जो मतलब अनइवन सरफेसेस ये सब रहेंगे, तो वो शू कहीं ना कहीं हमें एक लेवल पे बचा के रख रहा है। हैंड ग्लोव्स हो सकता है तो हैंड ग्लोव्स ले, बट कैसा है, एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग हैंड ग्लोव्स रेयर है, तो फिर लोग हाथ धोना में इतना फोकस नहीं रखते, तो इसलिए बेयर हैंड रहेंगे या हैंड ग्लोव्स रहेगा तो भी हमें हाथ धोते रहना है 1-1 घंटे। फिर अभी इसके लिए ये जो आज ट्रेनिंग सेशन जैसे चल रहा है हमारा, तो वैसे ही जब भी हमारा काम स्टार्ट होएगा, जब भी हमारा काम स्टार्ट होगा, एट दैट टाइम ऑल्सो वी नीड टू ट्रेन ऑन डेली बेसिस। ये चीजें जो कोविड-19 अवेयरनेस है वो उनको हमें कंटिन्यूस बताते रहना पड़ेगा कि आज भी हम लोग ये सब चीजों का पालन करेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हमें हाथ धोते रहना है, हमें मास्क कंटिन्यूसली लगा के रखना है। जब भी हम मास्क
क्योंकि हमें ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, तो वो टाइम पे मास्क जब ओपन कर रहे हैं तो वो सभी लोगों के सामने नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा अलग सा जाके हमें वो चीज करते रहना चाहिए। तो क्या जब हम 1 घंटे के बाद ब्रेक करेंगे हाथ धोने के लिए, उस टाइम भी उनको कह सकते हैं कि भाई अगर सभी को 2 या 3 मिनट के मास्क रिमूव करने की, पर दूर रह के एक दूसरे से, कि वो अकेले में ही बेटर रहेगा? सर कैसा है ना, सभी लोग को एक साथ भी छोड़ दिया ना तो वो भी प्रॉब्लम है। तो उसीलिए ऐसे 1-1 घंटे में, हाँ आप जाइए, फिर दूसरा एक आने के बाद एक आ जाए, एक जाएगा, ऐसा कि इसमें कैसा हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं और वो अपना मास्क ओपन करके थोड़ा फ्री भी हो रहा है, फिर वापिस आके अपने काम में लग सकते। Am I making sense? जी जी बिल्कुल सर। एक और यहीं पे बिल्कुल छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये फॉरेस्ट मेकिंग में पसीना बहुत आता है। राइट सर। तो पसीना के एक स्वाभाविक होता है कि बंदा पहुंचता अपने हाथ से या रुमाल से, कई बार लोग बाजू से पूंछ लेते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा होता है कि हाथ बहुत गंदे होते हैं, मिट्टी से भरे होते हैं, और रुमाल निकालने का हो नहीं सकता अपनी जीन्स या पैंट से, तो उस टाइम पसीने को इलाज में मुंह पे हाथ लगा नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में कैसे कोप करना है? सर मेन तो हमें यही ध्यान रखना है कि एक रुमाल रहेगा तो वो रुमाल से ही पहुंचे हम लोग। ठीक है सो ठीक है, पसीना आए तो चाहे उठ के चल दिए और जाके हाथ धो के फिर पहुंचा है, क्योंकि देखिए सर, हाथ भी गंदे मिट्टी से भरे हैं। हाँ, 1 घंटे में हाथ धोने का तो हमने रखा है, किसी को और थोड़ा ज्यादा ये फॉलो करना है तो वो जिसको आधे घंटे में धो रहा है वो और बेटर है सर। जिसको जब पसीना आ रहा है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं मेरा हाथ धो के आता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, मुंह धो के आता हूँ, वो भी चलेगा, वो तो ज्यादा बेटर है। बट जो हम लोग काम करते करते अपने आंखों पे, नाक पे, मुंह पे हाथ लगा रहे हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। एक्चुअल में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि प्लांटेशन के टाइम पे पसीना आता है, यस आई टोटली एग्री और आई हैव सीन आल्सो, बट सर वही चीज है हमें कि अवॉइड करना है वो सब चीजें। और हमारे दिमाग में हमेशा ये चलते रहना चाहिए कि हमारे बेयर हैंड से, डायरेक्ट बेयर हैंड से या हैंड से हमारा नाक कांटेक्ट हो रहा है या मुंह कांटेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ खतरा है। तो इसीलिए हमें काफी ये बैक ऑफ माइंड चलते रहना चाहिए। तो उसीलिए वो डेली सेशंस उन सभी लोग के होने चाहिए जो ये प्लांटेशन का काम करने वाले, डेली सेशंस होने चाहिए। आगे बढ़ू सर मैं? ये जी सर हाँ जी। ये स्लाइड सभी लोग को थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा ना कि जॉब हैजार्ड एनालिसिस क्या है करके? यस सर। कि फिर से एक बार स्लाइटली बोल देता हूँ कि हमें हर काम को डिटेल स्टेप्स में डिवाइड करना है, सीक्वेंस वाइज, और वो पहले स्टेप में क्या खतरा है, फिर वो पहले स्टेप का खतरे को हम लोग कैसे सेफगार्ड या कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीजें आनी चाहिए, हर स्टेप में आनी चाहिए। क्योंकि कैसा है, मैं अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ आपको, बट आप लोग कैसे फॉरेस्ट क्रिएटिंग में आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप लोग को आपका पूरा स्टेप्स पता रहेगा कि मैं पहले घर से निकलूंगा, यहाँ पे आऊंगा, फिर इसके बाद मैं ये प्लान करूंगा, पहले डिगिंग करूंगा, फिर उसके बाद ऐसे एक एक स्टेप्स आपके आते जाएंगे ना, तो आपको हर स्टेप में वैसे खतरे मिलते जाएंगे, और हर खतरे को कैसे गार्ड करना है वो हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलूं सर? जी सर। ये आपने अच्छा कहा कि अपना चलने से पहले ही विजुअलाइज कर लें कि क्या क्या स्टेप्स होंगे और हमें अपने आप को कैसे तैयार रखना है। राइट सर, क्योंकि कैसे हमारे काम के तो हम ही एक्सपर्टीज है, हमारे खुद के काम में, जैसे प्लांटेशन के हमारे फॉरेस्ट मेकर्स एक्सपर्टीज है, तो वो लोग उस काम के बारे में, हर स्टेप के बारे में ज्यादा जानकार है, तो वो लोग ये सब चीजें ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मैंने तो गिन चुन के 3 पॉइंट डाला है, बट वो लोग शायद वो 3 पॉइंट को 30 पॉइंट में कन्वर्ट कर दे। जी बिल्कुल जी। ये आपको दिख रहा है कुछ फोटोज, कुछ कार्टून्स? बिल्कुल सर। तो ये मेन अभी जो कंट्रोल्स करते हैं हम लोग, ये भी एक कंसेप्ट है सेफ्टी का, जो आप लोग समझेंगे तो ये पूरा कोविड को कैसे हैंडल करना है, वही आप लोग का पूरा ये गेम समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इसमें कैसा है कि एक मगरमच्छ है, आगे एक मगरमच्छ है जो एकदम खतरा है हमारे लिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है अभी कि हम लोग मगरमच्छ के पास जाए ही ना। ठीक है, पहला ये हो गया कि हम लोग वो एलिमिनेट कर देंगे, हमको चाहिए ही नहीं। या तो फिर सेकेंड पार्ट आ गया सब्स्टिट्यूशन। पहला आता है एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मैं सोच रहा हूँ कि उसके बदले चूहा आ जाए, बट मगरमच्छ तो मगरमच्छ है, वो चूहा नहीं बन सकता। सही है जी। तो फिर हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल डाले। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमने क्या किया कि उसको केज में बंद कर दिया कि वो काट ना पाए। काट ना पाए, राइट। तो उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाया। उसमें क्या है, ऐसे स्टिकर लगा दिया, वहां पे एक बोर्ड्स लगा दिया, साइन बोर्ड्स लगा दिया कि यहाँ पे एलिगेटर है तो यहाँ पे स्विमिंग ना करे या आना मना है, वैसा टाइप। और पांचवा पार्ट आता है हमारा पीपीई। पीपीई मतलब ये सब हमारे मास्क। अभी एग्जैक्टली ये सिचुएशन हम लोग कोविड से रिलेट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, कोरोना वायरस, ये पकड़ के चलिए। उसमें क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग घर से निकलेंगे ही नहीं बाहर, डायरेक्ट हमने एलिमिनेट कर दिया वो चीज। ठीक है, सही है। बट हमें इस पृथ्वी का सोच के झाड़ भी लगाने हैं। ठीक है, तो फिर वो टाइम पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है कुछ चीजें कि हाँ उसके बदले हम लोग क्या, जैसे प्लास्टिक के झाड़ लगाए वैल्यू रहेगा, वो चीज नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, अभी कोविड से बचने के लिए हमको क्या क्या बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो इंजीनियरिंग कंट्रोल आ रहा है हमें, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सैनिटाइजर्स आपको दिया जा रहा है, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, हैंड वॉश फैसिलिटी ये सब रहना चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल का पार्ट आ रहा है। आप लोग अगर समझ पाएंगे ये चीज को तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क। मास्क हमारा सर लास्ट पार्ट में आ जाएगा, पीपीई में। ठीक है फिर हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम लोग क्या है, कहीं कहीं पे ऐसे बोर्ड्स लगा रहे, कोई कोई जगह पे प्लेज हो रहा है ऐसा कि स्ट्रीट प्लेज हो रहा है कि कोविड कितना खतरनाक है, वैसे टाइप। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और लास्ट वाला है पीपीई। पीपीई मतलब हमको ये सब दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, फेस शील्ड दिया जा रहा है, हैंड ग्लोव्स दिया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है कि कोविड को हम लोग ऐसे हरा सकते हैं या इससे हम लोग ऐसे कंट्रोल कर सकते। खतरा तो रहने वाला है हमारे साथ, बट खतरे को मिनिमाइज करना इज द मेन गेम। हमको उसको पूरा मिनिमाइज करके पूरा रिड्यूस कर देना। ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है? जी सर। बाकी फॉरेस्ट मेकर्स? जी सर, हाँ जी क्लियर है। तो कोई आप लोगों में से कोई एक एग्जांपल ऐसा दे सकता है क्या जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल, मतलब आपके काम में कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? कोई भी एक सिंपल तरीका। गुरप्रीत तुसी दसो जी। वो तो जो जैसे एलिमिनेशन से शुरू करते हैं, जैसे आपने बोला था कि जिसको अगर लगता है कि बुखार है सिम्टम या कोई भी सिम्टम है तो वो बंदा तो वहां पे प्रेजेंट ही ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। और तो आगे? एलिमिनेट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे अपना था सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट जैसे जो बंदे हेल्दी हैं, जो बंदे उस एज ग्रुप में जब पता है कि हाँ फिजिकली भी स्ट्रांग है, तो उनको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करना है। एग्जैक्टली। और जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है वो हो गया कि अपना प्रोटेक्टिव गियर डाल के रखना, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है ना, तो वो चीजें आ गई इंजीनियरिंग कंट्रोल में। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आ गई जैसे साइन बोर्ड्स होना, कि बार बार रिमाइंड करते रहना कि अगर कोई अनजान बंदा भी आ रहा है तो उसको भी पता हो कि हाँ यहाँ पे माहौल ऐसा है कि यहाँ पे डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ही करनी है, ताकि कोई कैजुअली ना ले उस बात को कि अगर किसी ने मास्क नहीं डाला तो वो उस एरिया में ना ही एंटर करे। तो अगर एंटर करना भी है तो वो थोड़ा ध्यान रखे कि हाँ मास्क वगैरह मैंने डाला हो, उन चीजों का। वो आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में कि वहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि हाँ ये एरिया की आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे कुछ
और पीपी आगे अपना मास्क वगैरह जो प्रोटेक्टिव गियर हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट आपने बता दिया। मतलब ये कंसेप्ट आपको समझा है, मतलब काफी सेफ्टी के क्लैरिटी आ गई है, बहुत सही लगा, गुड। हसन तो जी, हम गुरप्रीत शायद हमारे जो गुरप्रीत सिंह जो बात कर रहे थे, इन्होंने पहली फॉरेस्ट जॉब शुरू करनी है, इन्होंने लगाने जानी है। अच्छा, तो हम जितना भी इस पे ऐड ऑन कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। जैसे राइट सर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम ये भी कह सकते हैं कि हर बंदा जो काम करने है उसके पास आरोग्य सेतु रहे। तो राइट, इसमें जो ब्रेक्स हैं वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि हैंड वॉश ब्रेक्स हैं। राइट, तो रिलैक्सेशन टाइम है, उस पर डिस्टेंसिंग रखनी ये भी जरूरी है। राइट सर, ये और अपना जैसे आगे के इन्होंने कहा स्लाइड कि में आ रहा साइन बोर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं, शायद मेरे हिसाब से तो ये लगता है क्योंकि नया नया है सब कुछ, लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है ये। है। तो उनको मिड डे में जब 4 घंटे हो गए काम के, तो उसको क्या होना चाहिए, एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस दोहराई भी जा सकें, राइट सर। ऐसा भी किया जा सकता है। गुरप्रीत जी, हाँ जी, शायद इस बार आप ही जा रहे हैं ना फर्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, ये पैंडेमिक सिचुएशन में। मैं हाँ जी, एक और मतलब आपसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जब आप ऐसे आप लोग का वहां पे जाके स्टे करने वाले, हाँ जी, राइट, आपका मतलब इतने दिन का प्रोजेक्ट रहेगा वो, हाँ जी, हाँ तो जी। आप जो होटल में रहेंगे वहां पे कैसे ये चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लीज, और उसका थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं क्या आप? होटल में आप रूम लेके रह रहे, तो हाँ एट दैट टाइम होटल से आपको यहाँ पे भी जाना है, कहाँ पे, प्लांटेशन एरिया में। हाँ तो जी। वो पूरा सिचुएशन को ये पार्ट में आप कैसे डाल सकते हैं कंट्रोल्स में? एक तो ऐसे कि हर टाइम मास्क वगैरह मेरे पास हो, सैनिटाइजर वगैरह होने बहुत जरूरी है कि हर टाइम मेरी पॉकेट में जा, मेरे जो स्लिंग बैग साइड में होगा। तो ये बहुत जरूरी समझ आ रहा है। और बाकी जो होटल का माहौल है वहाँ पे वो भी चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो कर रहे हैं या कैसा सीन है। हाँ, होटल में आप जब रह रहे कि हाँ जी, मतलब मैक्सिमम अगर आप ये अवॉइड कर सकते हैं कि मतलब बाहर के लोगों से मिलना, हाँ एलिमिनेट, जी, हमें हाँ एलिमिनेट ही करना है बाहर के, कोई भी एक्स्ट्रा लोगों से मिलना ऐसे कुछ जरूरत है ही नहीं है, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी मिल रहे हैं प्लांटेशन की जगह हाँ जी, हाँ पे, जी। ठीक है। यहाँ पे कैसे, वो तो हमारा जॉब रिक्वायरमेंट है, वर्क रिक्वायरमेंट। ठीक है तो जी। यहाँ पे कैसे होटल्स में मिलना अपना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो केस में हम लोग वो एलिमिनेट कर सकते हैं वो चीजें। ठीक है। या तो फिर कुछ ऐसा कि रूम पे ही रह के कुछ खाने का इंतजाम करवा सकते हैं वही ठीक है। होटल से। तो कैसे ये सब्स्टिट्यूट हो गया कि हमने बाहर जाके खाने से अच्छा वो अंदर ही कुछ ऐसा अरेंज करवा के लिया, हाँ जी, ठीक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल तो बाकी आप समझ ही चुके हैं कि कैसा करना है, ये हैंड सैनिटाइजर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो हाँ इंजीनियरिंग कंट्रोल पार्ट में आ गया। एडमिन पार्ट में तो एक और चीज आप बोर्ड जैसा लगा सकते हो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, ताकि मतलब बाहर के लोग कोई अंदर ना आ जाए। हाँ जी, और टीपी आपका मास्क तो हमेशा रहेगा, तो बेटर, मतलब मैं ये आइडिया लगा चुका हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गए। और मेन तो हमारा यही फोकस है, ये ट्रेनिंग्स अभी भी और कंडक्ट कराते रहेंगे हम कैसे, बट अभी आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो करके आपको ज्यादा ध्यान देना है ये चीजें। हाँ जी। थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी। ये कुछ कुछ हमारे ग्रुप ने यही मतलब प्लान किया है कि ये सब चीजें हमारे पास रहनी चाहिए। जो हमने सेफ्टी साइन बोर्ड्स का बात किया था, स्टिकर्स का बात किया था, सैनिटाइजर्स का बात किया था, वॉशिंग फैसिलिटी का बात किया था, फिर आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप वहां के सभी लोगों के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, और प्लस वो हमेशा ऑन में रहना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन में रहना चाहिए, किस लिए? क्योंकि कैसे है, वो हमेशा ब्लूटूथ और लोकेशन वाइज ये दिखाते रहता है कि आर यू सेफ और नॉट। तो जब तक वहां पे भी मतलब आप जब जाने वाले रहोगे, तो वो टाइम पे कैसे उन सभी लोग को ये इंस्ट्रक्शन दे देना, आरोग्य सेतु ऐप सबके मोबाइल में डाउनलोड करके रहना चाहिए। और कोई एक मॉनिटर जो रहेगा, जो लीडर रहेगा, वो सभी लोगों का आरोग्य सेतु ऐप वो चेक करेगा कि आर यू सेफ के जोन में है कि नहीं।
इनफैक्ट आपका भी जाके उसी को दिखाना है, हाँ मैं सेफ केस में हूँ, मैं अभी काम करवा सकता हूँ। ठीक है, वही सेम चीज टेम्परेचर, सॉरी इसका सर एम्फेसाइज किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आरोग्य सेतु का लाइक पंजाब में जितने मेरे आसपास लोग हैं, हमने इसको इतनी गंभीरता से अभी तक नहीं लिया था। जब पहली बार अभी 2-3 दिन पहले ही सुना इसके बारे में, जानता तो मैं था ऐसी ऐप है, पर इसका क्या विजन क्या है इसको सेटअप करने में, इसको और विस्तार में अगर बताइए। अगर कोई केस होता है इन केस ऑफ उस कैसे बंदा ग्रीन से ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो सकता है, ये कुछ एग्जांपल्स पेश कीजिए ताकि वो हमारे अंदर जहन में फिट हो जाए बात। ये इसकी अभी इम्पोर्टेंस बहुत है। ये हम पहले नंबर पे इसलिए रख रहे हैं आरोग्य सेतु, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है कम्युनिटी में कोरोना को स्प्रेड होने से रोकने में ये कैसे सहाय है। तो आप एक सिचुएशन लेके बताइए कि हमारे फॉरेस्ट में एक बंदा आ गया जो कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा आरोग्य सेतु से, बताइए सर। आरोग्य सेतु ऐप में कैसा रहेगा कि मतलब सभी डेटा स्टोर किया जा रहा है वहां पे कि आपके एरिया में कोई कोविड पेशेंट है कि नहीं। बट हमें लग रहा है कि ये खाली ऐसे दिखा रहा है, बट सभी डेटा स्टोर किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट कि यहाँ पे एक एरिया पकड़ लेंगे तो वहां पे वो है कि नहीं। तो फिर उसके बाद कैसे, अगर वो हमारे जोन में आ रहा है, हमारे जोन में कोई कोविड पेशेंट आ रहा है, तो वो जाके चेंज हो जाता है। जो ग्रीन वाला रहता है, यू आर ऑन सेफ, यू आर सेफ करके लिखा रहेगा ना, फिर वो चेंज हो जाता है, वो जाके होता है ऑरेंज में होता है या फिर डायरेक्ट रेड में जाता है। तो इसीलिए ये आरोग्य सेतु, ये जो गवर्नमेंट डेटा डाल रही है, मतलब गवर्नमेंट जो डेटा फिल कर रही है इसमें, वो डेटा आरोग्य सेतु में, तो ये चीज पूरा लिंक्ड अप है एक दूसरे से, हर एरिया वाइज दिखा रहे हैं वो लोग। अगर आपके ग्रुप में से एक बंदा कोई ऐसी जगह से आ रहा है जहां पे कोविड पेशेंट मिला है, ठीक है, तो फिर उसके आरोग्य सेतु में वो ग्रीन नहीं रहेगा। और हमारी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर हम उसके मान लो जोन ए में खड़े हैं तो यहाँ कोई पेशेंट नहीं है तो वहां ग्रीन रहेगा। अगर जोन बी में एक भी पेशेंट है, अगर जोन बी में एंटर करते हैं तो हमारे मोबाइल के जीपीएस के जरिए वो आरोग्य सेतु हमें अलर्ट करता है। क्या अलर्ट नहीं करेगा सर, वो डेटा हमारे इसमें भी आ जाएगा, ऑरेंज करके आ कि हम गलत जगह पे हैं या मतलब खतरे वाली जगह पे हैं, ऐसा कुछ? खतरे वाली जगह पे हैं हम जी। सो जीपीएस लोकेशन भी ऑन रखनी है जब आरोग्य, एज वेल एज ब्लूटूथ भी ऑन रखना है। ब्लूटूथ भी ओके, ब्लूटूथ भी ऑन रखना पड़ता है उसको। और जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है तो उनके लिए एक नंबर आता है 1921 करके, एक नंबर है जिसपे कॉल किया तो उसमें डिटेल देते हैं। बट उसका एग्जैक्टली मेरे पास अभी स्टडी नहीं है, तो बट आगे के अपन ट्रेनिंग सेशंस में वो कंटिन्यू कर लेंगे। बट ये आरोग्य सेतु ऐप रहना चाहिए और मैक्सिमम ये देखना चाहिए कि वो यू आर सेफ रहेगा तो ही काम करे, नहीं तो अगर वो नहीं आ पा रहा है तो फिर उसे भी मतलब रोकना है हमें कि भाई आपको यहाँ पे इतने सभी लोगों के साथ आके काम नहीं करना है। जी सर। और टेम्परेचर सेंसिंग गन, जैसे कि पहले भी कहा था, कोई भी आ रहा है मतलब वहां पे से एक लीडर होना चाहिए जो ये सब एक्टिविटी कंटिन्यू करा रहा है। टेम्परेचर का कैसे है, हम आते समय भी हमारा टेम्परेचर नोट किया जाएगा और जाते समय भी हमारा टेम्परेचर नोट किया जाएगा। जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइनेजेस है जो हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि हैंडशेक। पहले हम लोग यूजुअली हैंडशेक करते थे, ये सब अभी हमें बंद करना है। कि अभी आप लोग देखा जाएगा तो पूरा वर्ल्ड ही अभी भारतीय संस्कृति पे आ रहा है वापस, कि नमस्ते से चालू कर रहे हैं वापस। तो इसीलिए कैसा है, हमें ये देखना है कि हम वापस भारतीय संस्कृति अपनाएं, ना कि वो फॉरेन कल्चर की तरफ हैंडशेक जाए। और ये हमारे लिए अभी के ड्यूरिंग कोरोना टाइम में तो बहुत सेफ है। प्लस मेंटेन 6 फीट का डिस्टेंस, अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ। फिर आपके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स रहेगा वो किसी से शेयर नहीं करना है। फिर हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना है और
हमें थूकना नहीं है कहाँ पे, पब्लिक प्लेस ओह। पे या ये मेन चीज है। शायद ये होता है ऐसा प्रॉब्लम, किसी किसी को स्पिटिंग आता है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे स्पिटिंग से शायद दूसरे कोई बीमार हो सकता है करके। फिर टेम्परेचर चेक कंपलसरी है आते समय जाते समय, और जो बीच में ब्रेक्स मिल रहे हैं आपको, एक एक घंटे में जो ब्रेक्स मिलने वाले हैं वो टाइम पे 20 सेकेंड्स का हैंड वॉश होना चाहिए आपका। और कुछ आपका जो टिश्यूज है वो सब हमारे उधर एक कचरा डिब्बा भी रखना, डस्टबिन। तो वहां पे मतलब बकायदा हम लोग जो भी कचरा हो रहा है, जैसे कि प्लांटेशन में क्या होता है, ये जो सैपलिंग्स है उस पे नीचे जो प्लास्टिक्स के ये रहते हैं, तो ऐसे ही फेंकना नहीं है, वो जाके वो एट वही टाइम पे जमा करके हमें डस्टबिन में डालते रहना। और जैसे कि ट्रैवलिंग का रूल्स है, बाइक पे पहले तो बाइक पे मोपेड्स पे डबल सीट आते थे, बट हमें अभी ये बाइक पे मोपेड पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे डबल सीट आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग उधर ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि बाइक पे एक, फिर कार में 2, वो भी डायगोनल बैठेंगे तो ज्यादा सही है। इसीलिए यहाँ पे देखो क्रॉस में ऐसे हमने लगाया पीपीटी में। फिर कोई मिनी बसेस है तो वहां पे भी अल्टरनेट सीट पे बैठना चाहिए। और कैसा है, मेन हमारा फोकस सोशल डिस्टेंसिंग पे ही रहना चाहिए। मेन सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कंट्रोल है जो मतलब हमें इससे बचा के रख सकता है जी। और जैसे कि ये मास्क, आप लोग ये तो पता है आपको, मास्क पहनना चाहिए कॉटन का। गॉगल्स भी हमें मैक्सिमम लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि कैसा है हमारा आँख पे जब पसीना आता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग पसीना आ रहा है तो आँख पे ही जाता है वो। कैसा है, कुछ चीज ऐसा कुछ रहेगा जो आपके आँख को भी अच्छे से कवर करके रखेगा। फेस शील्ड सबसे बेस्ट होता है उस चीज में। कैसा है, थोड़ा गर्मी लगेगा हमें, बट कैसा है हमारा आँख यहाँ का पसीना आँख में नहीं जाता। कि यहाँ पे मतलब जो माथे फोरहेड के साइड पे एक स्पंज का लेयर जैसा रहेगा, एक फोम रहता है, तो उसके कारण वो जाता नहीं है पसीना। तो ये हमने पहन के देखा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो फिलहाल आप लोग वो यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर। और मेन बात, जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि जो भी चीज टेम्परेचर नोट कर रहे, फिर बाकी हैंड वॉश का डेटा, हैंड वॉश जो कर रहे, कंफर्मेशन ले रहे, तो उसमें वो भी हमें एक शीट बना के ले लेना है। हर आदमी का नाम लिख के नाम लिखवाना है, क्योंकि कैसे हम लोग जाएंगे अभी वो दिन तो गाइडेंस करने वाले, तो वहां पे से एक बंदा वो ये करना चाहिए कि वो सभी लोगों का नाम लिख के, हाँ हैंड वॉश हो रहा है एक टाइम पे, कितने बजे हुआ, वो टिक लगना चाहिए। तो उसका फॉर्मेट भी मैं रवनीत सर को सेंड करता हूँ, ताकि मतलब वो गुरप्रीत जी से शेयर करें, और गुरप्रीत जी उसके हिसाब से आगे वो पास ऑन कर सके। और कैसे ये हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ना, जो आज का प्रेजेंटेशन है, ये फिलहाल जितना गाइडलाइंस हमें मिला है, ये थोड़ा बहुत हमारे स्टडी से हमने कोशिश किया है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर पाए। पर ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है या स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हम लोग कैसा टाइमली रिव्यू करते रहेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे। और मेन मतलब गुरप्रीत जी, आपको यही देखना है कि आउटडोर के टाइम हमारा तो सभी एक्टिविटीज आउटडोर में होता है, तो वो टाइम पे हमें ये सब चीजों से, जो नए नए लोग हैं, जैसे कि वहाँ पे काफी लोग दिखेंगे आपको जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है 2 फीट दूर रखना है, तो हम लोग मैक्सिमम ये ट्राई करेंगे कि हमें 4 फीट दूर रहना है, कि हमें ज्यादा ये सब फोकस करना है सोशल डिस्टेंसिंग पे। मेन 4 फीट हमारा रूल है, इकोसिक का रूल 4 फीट। कैसे ज्यादा स्ट्रिक्ट करना ज्यादा सही है वो हमारे 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर, 12 फीट 4 मीटर। गुरप्रीत जी
हाँ जी, हाँ जी। हाँ 4 मीटर। हाँ जैसे कि गवर्नमेंट का रूल है 2 मीटर का, बट हमें 4 मीटर दूरी रखनी है इन लोगों से। ठीक है जी। बाकी जो भी डेटा है हमें ये हर टाइम तो पे मेंटेन अगर करना है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हों जहाँ पे 4 मीटर रखना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब उनको बिल्कुल अवॉइड ही कर देना, जहाँ मतलब प्रिकॉशंस लेके कर सकते हैं वो थोड़ा। कैसे उसमें भी हमारे आपको एक सेकेंड, सॉरी, आपको 4 मीटर रहना दूर सबसे। जो काम कर रहे हैं वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। यू आर गोइंग देयर एज अ सुपरवाइजर, आप वहाँ काम करने नहीं जा रहे हो, उनको बताने जा रहे हो काम आपने कैसे करना है। आप ठीक टेम्परेचर भी नहीं लोगे, आप किसी के नजदीक नहीं आओगे, आप अपना डिस्टेंस ज्यादा रखोगे और उनको बोलोगे कि आपके लिए 2 मीटर का रिकमेंडेड डिस्टेंस है। ठीक है जी। गुरप्रीत जी, जो आज ये ट्रेनिंग हुआ है ये आपको उन लोग को समझाना है कि ये सब चीजें मेंटेन करनी है आपको ये प्लांटेशन के टाइम पे। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। मतलब जो हमने कहा 2 मीटर की दूरी मेंटेन करना है, ये वो जो काम करने वाले लोग वहां पे उन हाँ लोग जी, के लिए आपको ये सब चीजें बोलनी है और स्ट्रिक्टली वो फॉलो कराना है। ठीक और आई आपको थिंक ये चीज दूरी रखना है, आपको 4 मीटर दूरी रखना है। आई थिंक ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬਾय ਦਿਸ ਗਨ ਥਰਮਾਮੀटर ठीक है। machine ठीक है। if they don't already have it। ठीक ਵੈਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ हाँ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਉੱਥੇ ਡੈਸਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਡੈਸਕ ਹੈ। ठीक। ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸੀਬੀ ਚਲਾਣ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ he should हाँ be tested ਤੇ log book ਉਹ print ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਉੱਥੇ। they should be filling the log book like हाँ for जी। this and you should just countersign like after 1 hour ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ just take your pen, do not touch the paper even, just sign कि हाँ सब ठीक है and you review it कि काम ठीक है। ठीक चल रहा है। ठीक है जी, समझ गया मैं। तो वो मतलब this is something very new and not a casual routine for us all ਤੇ but it must be taken very seriously। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ हाँ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। these things should be in place। ठीक है जी। गुरप्रीत जी, हाँ जी। there is one more point, like you should use your own pen। ठीक है, हम लोग पहले ही ये कहा जा रहा है कि मतलब हम लोग को दूसरे का पर्सनल बिलोंगिंग्स यूज नहीं करना है, तो मेक श्योर कि आपके पास पेन है सो दैट आप ऊपर ही ऊपर साइन कर रहे हैं और कुछ दूसरा हमें दूसरे लोगों का कुछ चीज लेना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल। और जहाँ पे वो वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, जो प्लांटेशन के लिए आए लोग जो डिगिंग कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ कुछ टूल्स रहेंगे, तो आपको ये भी समझाना है कि ये हमें सैनिटाइज करवाना है। ठीक है जी। क्योंकि आज के डेट में सैनिटाइज करवाना है, प्लस सैनिटाइज करवाने के बाद वो टूल लेके वही बंदा काम करेगा, ना कि वो टूल लेके दूसरा बंदा काम करेगा। ठीक। तो समझ पाए ना गुरप्रीत जी? हाँ हाँ जी, मैं समझ गया। क्योंकि कैसा है ये सब चीजों में ना बहुत छोटे छोटे कैच पॉइंट्स है, तो हमें बस वही पकड़ के चलना है कि मतलब जो बंदा वो उसके टूल के साथ काम कर रहा है उसका टूल दूसरे को देगा नहीं, प्लस वो टूल भी सैनिटाइज होते रहने चाहिए फ्रीक्वेंटली। मतलब कम से कम एक्सचेंज हो, चीजें आपस में कम से कम, हाँ मतलब कम से कम, बट और होए नहीं तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, मैं समझ गया वो बात। मतलब हाँ इन दिमाग में ये रखने के कोई भी चीज एक बंदे से दूसरी जगह ट्रांसफर ना ही हो, जिस बस बस एग्जैक्टली एग्जैक्ट उसके पास ही रहे वो। एग्जैक्टली। Hassan, if you हसन can share हसन the sir, method of disinfecting tools, etc. एक मिनट चरण जी मैं पूछना चाहता सी हसन जी पावर पॉइंट का इसके बाद आगे भी है और नहीं सर, ये लास्ट टच है। तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। आपका चेहरा हम देखेंगे बड़ा, तो फिर क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं और भी, तो बाकी लोग भी साइलेंट है उनको भी ले सकते हैं हम। जी सर। थैंक यू। तो ये मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, हाँ सर। आप ही कर दीजिए सर, आपकी तरफ से होगा आई थिंक।
ये स्टॉप शेयरिंग हुआ। तो जी जी अब कहिए जी, जो चरण सर कह रहे थे सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी चरण जी, क्वेश्चन पूछना जी। एंड आई आल्सो इनकरेज ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਟ ਰੂਮ 'ਚ, ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। को डिसइंफेक्ट करने का जरा प्रोसीजर शेयर करिए। अभी टूल्स दो टाइप से डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। एक मतलब कि हमारे पास एक केमिकल होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड करके, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो वो खेत के लोग जो पंप से मारते थे ऐसे गले ये पीठ पे रख के, हाँ जी हाँ जी हाँ, उसमें कैसे 15 लीटर के पानी में उसका प्रोपोर्शन ऐसा रहता है, 15 लीटर के पानी में 300 ml का सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो चीज से हम लोग डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर सकते हैं। या तो फिर नॉर्मल हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं जो सैनिटाइजर से है। ये दो तरीका है जो टूल्स को हम लोग कर सकते हैं। यूजुअली कंपनीज में कैसा रहता है, कंपनीज में हम लोग सैनिटाइजर से अलग चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं और डिसइंफेक्टेंट से अलग चीजों को ये डिसइंफेक्टेंट करते हैं, ऐसा। क्योंकि कैसा फ्लेमेबल चीजों पे हम लोग सैनिटाइजर नहीं चला, क्योंकि वो कैसा है सर, सैनिटाइजर में अल्कोहल रहता है, तो वो चीज हम लोग फ्लेमेबल चीजों पे नहीं लगा सकते। और जैसे कि हमारे टूल्स हो गए, वहां पे जो प्लांटेशन के लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं, तो हम लोग उसमें दोनों चीज लगा सकते हैं, जो सैनिटाइजर भी लगा सकते हैं, या तो फिर ये लिक्विड बना के रख लो आप लोग 15 लीटर के, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड 300 ml, और वो स्प्रे कराते रहना है। और जैसे कि ये प्रोजेक्ट ऐसा बड़ा है तो वो लेके रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। सोडियम हाइपोक्लोराइड 300 ml, 15 लीटर 15 लीटर वाटर, दोनों का मिक्सचर वो डिसइंफेक्टेंट पंप में डाल के हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल सैनिटाइजर्स हम लोग स्प्रे करके उसको वाइप कर सकते हैं टूल। थैंक यू जी सर। हाँ जी, नाउ एनकरेज पवनीत, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन आया सी, प्लीज अनम्यूट करके ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी है, एक और बात मैं शेयर भी करना चाहता हूँ कि हमें रोज ही न्यूज पर ये देखने को मिल जाता है कि कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन है और कौन सा नहीं है। तो अगर हमारा प्रोजेक्ट जो साइट है वो कंटेनमेंट जोन में पड़ रही है तो हमें प्रोजेक्ट वहां पर पहले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एक बार ये भी हो सकती है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अगर उस साइट को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो प्रोजेक्ट वही बीच में छोड़ देना चाहिए। और तीसरी बात, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि जो लेबर आ रही है या जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन से ना हो। तो एक तो रेगुलर न्यूज को हमने देखना चाहिए, और बाकी कंटेनमेंट जोन के बारे में अगर आप असद जी अगर आप थोड़ी और जानकारी दे सके तो बहुत अच्छा होगा। राइट, कैसा है, जो आरोग्य सेतु ऐप बोला जा रहा है ना, आरोग्य सेतु ऐप में यही सब नोट करके डेटा आता है कि यू आर सेफ और नॉट। तो इसीलिए हमें मेन तो ये आरोग्य सेतु ऐप को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए, और प्लस इसका इम्पोर्टेंस आपको फिर समझेगा कि ये कंटेनमेंट जोन क्या होता है, उसमें फिर नॉन कंटेनमेंट जोन क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, ऑरेंज क्या होता है और रेड क्या होता है। तो आप लोग को वो डिटेल में आइडिया आ जाएगा, और सभी का डेटा इसमें ही फिल कर रही है गवर्नमेंट आरोग्य सेतु ऐप। तो आप आरोग्य सेतु ऐप रहेगा तो बहुत ही बेटर है, उसके बिना मतलब काम चालू करना सही नहीं है। जो आरोग्य सेतु ऐप है, जैसे पवनीत पूछ रहे थे, कोई भी बंदा जो कंटेनमेंट से या कह लीजिए रेड जोन से आ रहा है काम करने, वैसे तो उसको निकलने नहीं दिया जाएगा, पर अगर कोई आ गया तो वो आरोग्य सेतु हमें वो बताएगा क्या कि एक इंसान यहाँ है जो इन्फेक्टेड जोन से आया है।
हाँ सर, वही डेटा दिखा रहा है, वही डेटा बताएगा कि अगर कंटेनमेंट जोन से कोई आ रहा है ना, तो उसके इसमें वो ग्रीन आएगा ही नहीं, यू आर सेफ करके आएगा ही नहीं। वो तो हम, अगर वो इलाके से दूसरे इलाके में भी आ गया, सॉरी मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, करेक्ट तो है आपका, वहाँ but ये मोबाइल पे आएगा वो भी, एक बंदा यहाँ पे, क्या उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि सर, कौन है? इसमें भी एक है, इसमें भी एक कैच पॉइंट ये है कि हमें हमेशा हमारा जीपीएस मतलब जीपीएस लोकेशन एज वेल एज ब्लूटूथ चालू रखना पड़ेगा 24 आवर्स। तो उस तभी बंदे को कैच करने का कोई तरीका होगा क्या? क्योंकि एक बंदे के कारण प्रोजेक्ट रुक रहा है, तो ऐसा इतने लोग रिस्क में आ रहे हैं। अगर उसके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो उसका फोन बताएगा कि ही वाज इन द कंटेनमेंट जोन, मे बी 4 दिन पहले या हफ्ता पहले या आज, वो उसका फोन, उसका डेटा उसकी स्क्रीन पे दिखाएगा कि वो कंटेनमेंट जोन में गया था। The moment you see his screen, you will get the information कि उसका क्या स्टेटस है in the terms of containment zone, और अगर वो किसी और कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया है तो वो भी उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर उसके उसका पास डेटा आपको कम्युनिकेट नहीं करेगा कि ये है, उसकी स्क्रीन से देखना पड़ेगा। सर अगर उसके पास स्मार्टफोन है ही नहीं है, दूसरा फोन है, तो क्या होगा? सर उसका एक तरीका है, एक मिनट, नहीं उसका एक है, उसका 1921 करके एक नंबर है, उस पे कॉल करना पड़ेगा हमें। पर वो तो उसके फोन से करेंगे और हम उसका फोन नहीं छेड़ेंगे। उसके फोन से करेंगे। और एक मिनट, उसका थोड़ा और डिटेल, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि हमने कल जब अपनी डाटा शीट बनाई है तो कमिंग प्रोजेक्ट के लिए हमें करीब 100 लेबरर्स चाहिए। तो इतने लेबर वाले लोग आएंगे, चाहे उसमें से मान लीजिए 25 बंदे ही आते हैं तो 4 दिन काम करेंगे तो 100 हो जाएगा। पर उन 25 बंदों का सभी का फोन स्कैन करना होगा, और अगर नहीं उनके पास स्मार्टफोन तो उनसे कॉल करवाना होगा 1921 पे। सर ये क्या होता है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम करके एक चीज है, जो IVR? मतलब IVRS बोला जाता है, फॉर इंक्लूडिंग सिटीजन, मतलब जो स्मार्टफोन नहीं है उनके पास। उसमें क्या रहता है, 1921 पे कॉल करेंगे ना हम, तो फिर वहां से वो बोला जाता है ब्लूटूथ पर, इसमें भी चालू रखना पड़ता है ब्लूटूथ। बट अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं किया, बट यहाँ पे नेट पे है ये चीज, तो इसका डिटेल मैं आपको भेजता हूँ सर, और हम लोग थोड़ा इसमें और थोड़ा जी सर, स्टडी करके इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ के निकाल लेंगे। जी सर। हाँ जी, पवनीत ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन ਹੋਏ जी क्लियर? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ क्वेश्चन ਹੈਗਾ। ਗੁੰਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ। ਗੁੰਤੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ। हाँ जी सर, मैं पूछना सीगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? तो मैं दस दिना जिद्दां हसन जी ने दस्या सीगा इनिशियली कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਰੱਖਣੇ ਆ ਗੱਡੇ ਖੋਦ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਚ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਵਨੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੈਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸੋ ਮੰਨ ਲੈ 50 ਪਿਟਸ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ that time we will not go close to each other, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਫੜਾਉਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਫੜਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾਣੀ, ਓਕੇ, ਸਟਾਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵੇ, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਗਾਣੀ ਹੈ।
ठीक है फिर पॉसिबल है, फिर सब क्लियर है। हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टाइਮ ठीक है, ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 20 ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਿਓ ਪਲਾਂਟ ਦਿਓ ਪਲਾਂਟ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ them ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜਨਾ ਹੈ, 3-3 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 2-2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜਨਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਓ ਔਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਓ ਔਰ ਜਾਓ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਸੇਫਟੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਪਰਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਸੀਨਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 30 ਬੂਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 15 ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ 7 ਜਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੇੜ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਪੇੜ ਰੱਖੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗੈਪ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ 2 ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ डेंसिटी ना बढ़े बंदियां दी उन एरिया दे विच। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हसन सर हमारा इसलिए कम्युनिकेशन शुरू हो गया कि हम विजुलाइज कर, आपने जो विजन दिया उससे हर बंदा विजुलाइज करना शुरू हो गया। जहां भी आपको लगे कि ये बंदा कुछ गलत कह रहा है या कुछ ऐड करना हो आपको, प्लीज फील फ्री, आप कर दीजिए ऐड कहीं भी। जी सर, अभी तक तो लगा नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसका मतलब कि आप लोग सभी लोग अच्छा समझ रहे हैं, प्लस वो अप्रोच जा रहा है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही मैं चाह रहा था ट्रेनिंग के पहले कि अप्रोच होना चाहिए, बस अप्रोच हो गया तो अपन सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ठीक सर। तो जो एरिया से सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं वो एरिया में जहाँ क्यू की बात कर रहे थे, या जिधर भी कोई भी लोगों का असेंबली पॉइंट है, या जहाँ भी कोई क्यू टाइप का सिस्टम आता है इसमें, वहां पे जमीन के ऊपर व्हाइट चॉक के साथ मार्किंग किया जा सकता है कि इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आज एक नॉर्मल दुकान के बाहर, एक वेजिटेबल वेंडर के बाहर भी उन्होंने मार्किंग करके रखा हुआ है, पुलिस ने या वेंडर्स ने या मार्केट एसोसिएशन ने, कि आप एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच में इतना मिनिमम डिस्टेंस रख के चलोगे। तो जो आपके पास सैपलिंग लेने आता है वो बंदा भी वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। और जो एरियाज का बताया गया कि 15 के बदले 7 हो जाएंगे, सो लेट अस अज्यूम कि एक रेक्टेंगल एरिया, जैसे आपने बोला कमरे जितना एरिया है, तो हमने 6 में डिवाइड कर दिया। तो 6 लोगों को अलग 6 जोन्स दे दिए, 4 कॉर्नर्स एंड 2 इन द मिडल, समथिंग लाइक दैट एज पर द ज्योमेट्री एट दैट साइट। डिवाइड कर दिया कि आप खाली इतने एरिया में सारा काम करोगे और आप खाली इतने एरिया में सारा काम करोगे। तो जो हमारा स्पीशीज का मिक्स भी है उसी हिसाब से दिया जा सकता है कि ये जोन में 3 ये स्पीशीज के पेड़ लगने वाले हैं, 5 ये स्पीशीज के लगने वाले हैं, 10 ये स्पीशीज के लगने वाले हैं, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। जो हम 100 मीटर पैच का डिस्कशन कर रहे थे, 100 मीटर माउंट एज पर शुभेंदु जी SOP, so that can be further broken down into, let us say, 10 meters each for 10 people. जी जी चरण सर, हैव यू फिनिश सर? प्रदीप जी का कोई क्वेश्चन सीगा? जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जो टूल्स हैं वो टाइम टाइम पे सैनिटाइज किए जाएं, दिन में 3 या 4 बार जब भी टाइम मिले। जब भी टाइम नहीं सर, ये हमें टाइम सेट करना है कि इसको 1-1 घंटे में हमें करना है। जैसे हमने हाथ धोने का डिसाइड कर लिया है कि हाथ हमें 1-1 घंटे में धोते रहना है, वैसे ही सेम हम सैनिटाइज भी 1-1 घंटे में करते रहेंगे। या फिर सर ऐसा हो सकता है जो हमने टूल कैरी किया है हम साथ में हाथ सैनिटाइज करें और साथ में उसको सैनिटाइज कर दें। तो इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो टूल सैनिटाइज करने में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि टूल भी सैनिटाइज करेंगे, हाथ भी सैनिटाइज करेंगे। आज के डेट में कैसा है ना कि जो चीज सैनिटाइज होके हो सकती है
तो हमें सैनिटाइज होके ही यूज करना है, क्योंकि आप लोग अभी ब्रेक लेंगे, राइट? आप लोग जब ब्रेक के लिए जाओगे या हाथ धोने जाओगे, वो टाइम पे पता नहीं वो टूल के साथ कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कैसा है वही हमको मेंटेन करना है कि जब भी हम यूज करने वाले हैं वो उसको वापस सैनिटाइज करें, जब ब्रेक आ गया उसको वापस सैनिटाइज करें और फिर काम करना चालू करें। और संजीव प्रदीप जी ने भी यही लाइंस पे बोला था, सही है, Yes, sir. थैंक यू। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਫੜਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ के जाना। मतलब पर्सनल दे दिया उसको Yes, टूल, sir, हाँ। yes, ये yes, टूल ये sir. तेरे साथ रहेगा सारा दिन। हाँ जी सर, हाँ जी। यस हाँ, सर. तो Best इसमें of जैसे हम तो टूल का sanitizer- डेजिग्नेटेड एरिया पहले बनाते थे, वैसे ही वो 10 या 6 या जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनका भी डेजिग्नेटेड एरिया अलग अलग बना दें। बेस्ट टूल भी डेजिग्नेट कर दिया, हाँ जी, तो उसको सैनिटाइज ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगा फिर। दैट इज बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड अपना रविंदर जी। एक बात और थी कि जो रिफ्रेशमेंट या फूड आना है उसमें कैसी कैसी प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं, कैसे सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। दिन में 2 बार तो चाय आती है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी और भी चीजें आप थोड़ा इसको खोल के बता दीजिए। जैसे कि वहां पे भी यही है, वो उसके लिए भी एक डेजिग्नेटेड एरिया रहेगा आपका जी, ठीक है, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बैटरी लो यार, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, प्लस हमें हमारा हाथ सैनिटाइज करके लेना, हाथ वॉश करा के लेना, फिर हमें वो टी ब्रेक्स हो रहा है या कुछ खा के ले सकते हैं, क्योंकि अभी खाना आ रहा है या कुछ भी चीज आ रहा है उस पर सैनिटाइज हम वो स्प्रे नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें वो अपना नॉर्मल हाथ धो के सोशल डिस्टेंसिंग ये 2 चीज मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। सही है। और एक क्वेश्चन है सर कि गाड़ी में जैसे आपने बता दिया कि ट्रैवलिंग का गाइडलाइंस है, नवजोत सिंह हमारे जो कोलीग हैं ये पूछ रहे हैं कि अगर पब्लिक बस सर्विस में जाना है तो उसका कुछ गाइडलाइंस है क्या? क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत इकट्ठा ही बैठ रहे हैं, कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं चल रहा। वैसे तो एलिमिनेट ही कर रहे हैं हम लोग इसको, मैं तो अभी क्योंकि शुरू नहीं हुआ कभी, मेरा तो ये मानना है कि मैं एलिमिनेट कर दूंगा इस चीज को कि बस से ट्रैवल करना ही नहीं है। सर मैं भी वो पहले स्टेप पे ही खत्म करूंगा ये चीज कि एलिमिनेट करना है, क्योंकि उसमें कैसे बस के अंदर घुस गए लोग, इतने नजदीक बैठे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया, प्लस उसके बाद आगे वाला कहाँ से आया है वी नेवर नो, प्लस वहां पे सभी सर्फेसेस उससे पहले कौन कौन आके बैठा है, मतलब वो भी एक एंडलेस पार्ट पे चला जाएगा अपना रिसर्च थिंकिंग, और एक जाएगा अपन साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होने लग जाएंगे कि यार यहाँ क्या क्या है करके, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड ही करना चाहिए, टोटली एलिमिनेट ही करना चाहिए। जी सर। साढ़े नाल सुखप्रीत सिंह है ने इस टाइम के जा चुके ने, आई थिंक ही लेफ्ट। सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रेइंग का था जी सर, वो चीज हमें जो टूल्स पे मार रहे हैं हम लोग या ये, तो हम लोग सैनिटाइजर मारेंगे तो ही सही रहेगा उस पे, जी डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर नहीं मारते वो सोडियम हाइपोक्लोराइड करके, क्योंकि कैसा है वो थोड़ा कोरोसिव है, दैट में गिव ईचिंग पार्ट, तो उसलिए वो मारते समय भी हमें मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो वो टाइम पे शायद वहां पे प्रैक्टिकली आप लोग उतना कर नहीं पाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम लोग सैनिटाइजर्स ही यूज करें और अपने टूल्स को, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और अपना डेजिग्नेटेड टूल रखें अपने पास। तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइट वाला जो डिसइंफेक्टेंट का बोल रहा था, और दैट इज फॉर कंपनी पार्ट इट्स दैट इज ओके, बट ये जगह के लिए वो ये नहीं रह पाएगा, रिलेवेंट नहीं लग रहा मुझे। जी समझे सर। तो रविंदर, पवनीत, मनवीर, सतिंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਆਲੋਕ ਜੀ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ जी, थोड़ा इशू लग रहा है कि फूड कितना, मतलब जिवें होटल जाके रहना है
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਦੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਤੋਂ ਟੈਸਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ। ਬਟ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣ। ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਓ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਯੋਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਔਰ ਇਨ ਦ ਹੋਟਲ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। मतलब या देयर इज अ पॉइंट व्हाट यू आर आस्किंग। चरण सर या हसन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जहाँ पे क्वेश्चन? ये पार्ट कैसे है ना सर, हम देखे जाएंगे तो ये एंडलेस है। एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये एंडलेस है, बट वी आर डूइंग आवर पार्ट कि मतलब हमें ये सब प्रिकॉशन लेते रहना है, हाथ धोते रहना है, हमारा हाथ नाक पे, आंख पे, मुंह पे नहीं लगना है। ठीक है, ये वायरस कैन एंटर अवर बॉडी इनटू 3 चीज ना, अभी आंख हो गया, नाक हो गया और मुंह हो गया। तो ये तीनों चीजों को हमको अवॉइड करते रहना है। तो उसके लिए हम लोग जो जो प्रिकॉशंस ले रहे वो काम आएगा। क्योंकि सर अभी बहुत रिसर्च तो यही बोल रहा है कि कहीं का बार मतलब क्या है, मतलब ऐसा बिना ये सिम्टम्स के भी कुछ आ जाता है करके। बट वही है कि लोग मतलब मैक्सिमम यही ट्राई कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले, इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए नींबू पानी रोज पीते रहे, विटामिन सी ज्यादा ले, वो भी ऐसा बोला जा रहा है रिसर्च के अनुसार। तो कैसे अभी सर हम लोग जो जो डेटा इधर उधर से मिला है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, उसके हिसाब से एक ये बना रहे। ये कोई ऐसा अपना स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, जो चेंजेस होते रह रहा है डेली, नया नया कुछ ना कुछ स्टडी आते जा रहा है। बट जो जो बोल रहे गवर्नमेंट, जैसे कि आरोग्य सेतु का, वो काफी हमको हेल्प देगा कि वो एरिया में कुछ है या नहीं है। जी सर। और जैसे कुछ नया चीज भी आएगा हम अपडेट करते रहेंगे सर उस चीजों को। उसका एक रिफ्रेशमेंट का मेरे को ये सीन समझ आ रहा है कि रिफ्रेशमेंट भी जितनी मैं अपने लिए जो फॉरेस्ट कोऑर्डिनेटर है वो जितनी अवॉइड करे, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट जैसे ही चीजें अपने पास पर्सनल बिलोंगिंग में रखे और वही कंज्यूम करे तो बढ़िया। मतलब बाहर से खाना भी जितना कम हो सकता है, जहाँ पे वो कम हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, ड्राई फ्रूट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਨਾ ਹੈ, ਐਪਲ ਹੈ, ਯੂ نو ਅੱਜਕੱਲ ਆੜੂ ਹੈ, ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਪੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, that becomes absolutely safe। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ in the given situation to fill up that bottle and consume from that bottle and not take from other bottles या utensils या mugs या कोई दूसरे ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ यूज करो। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ
द एंटायर कम्युनिटी, सानू आपस च बहुत हेल्प मिलनी है। रविंदर अपनी एक्सपीरियंसिस शेयर कर रहा, आलोक ने साडे नाल, गुंतेश्वर है, नवजोत है, पनवीर सिंह है, प्रदीप है, सतिंदर है। सो तुसीं सारिਆਂ ने फॉरेस्ट लगाई है, तो कोई ना कोई सिचुएशन इदां दी तुसीं घट के कर सकते हो क्वेश्चन, चाहे रिपीट है। आई थिंक जे तुहानू क्लैरिटी नहीं तो जरूर पुछो, सारिਆਂ ਨੂੰ रिविजन चाहिदी है। वी नीड टू इनकलकेट दीज काइंड ऑफ हैबिट्स कि ਅਸੀਂ डिस्टेंसिंग ਵਧਾਈਏ। सो सिचुएशंस विल बी वेरी हेल्पफुल। प्लीज लास्ट, आई थिंक लास्ट, लेट्स टेक लास्ट 5 मिनट्स देन। इसमें सर और एक बात एक चीज कि आप लोग को जो एक जॉब हैजार्ड एनालिसिस करके दिखाया था, अभी हर बंदा उसमें से वो चीज अपना खुद का बनाते जाएगा ना, जॉब हैजार्ड एनालिसिस, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसके अल्टरनेटिव सोचने का मौका मिलेगा। तो आगे भी मतलब ऐसा कर सकते। सॉरी, कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੇਫ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਖੁਦ ਧੋ ਲਓ, ਯੂ ਆਰ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਗਲਾਸ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ 40 people at one time. Okay. ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਵਨੀਤ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਹੋਰ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਫਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਆਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਫॉर ਆਵਰ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਸਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੂਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਪਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ BC, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਕੋਸਿਕ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, this is in the unlock stage. So lockdown 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ unlock 1.0 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ, and that too from a government body. So we took a decision ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮੋਟਲੀ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਜੋ ਹਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਰਡ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਵਰਕਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੜ ਹੀ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੇਵੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਾ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ ਔਨ ਦੈਟ ਗਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਹੋਣਗੇ, it will be a very special opportunity for Gurpreet, for Ravneet ji, for Pavneet ji to explain to people ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that is the key vision of the safety as far as EcoSec point of view ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਪਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂਲਸ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तो वो बैकअप पूरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੰਝ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੋਰੈਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਫ ਦ ਐਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਲੈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਨਸੇਫ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਅਨਸੇਫ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
that is the mandate of the organization. ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, I was making a point that we should come up with an agreement to abandon the entire project on these grounds, and that agreement has to be signed with the host party as well. What do you say? That is for the back office to work on. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਪੀਪੀਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, in itself ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨੈਟ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ perform ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, not necessarily only for forest making. So this is also part of preparedness, ਤਿਆਰੀ for facing those kind of situations. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ norms follow ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, I'm sure ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, whatever that case may be, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਬਿਫੋਰਹੈਂਡ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫਤਾ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇ ਬੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ दैट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਹੋਰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਸਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹਸਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 24/7 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਕਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਹੈ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਸਮਾਰਟ ਪੀਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਲੀਗੇਟਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਫੋਰਗੇਟ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੋਗਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 99.99% ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਬੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣੇ, ਸੋਪ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੂਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਜਾਂ 1000 ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਐਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। So I think it is a little bit of a challenging role because it is also new, but at the same time it is also a way of learning कि ਅਸੀਂ ਇਹ keenly observe ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ slow ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ compromise ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਈਡੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਐਫਰਟ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਗਾਈਡੈਂਸ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੱਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ, ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਬਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਬਰ 1, we are not indulging in the execution process। ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। we will be supervising the operation, guiding people ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਲੋ, ਹੋਰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸੋਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਡੰਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬੌਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ in the center of that circle, 2 ਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੂਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ triangles and all that, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਓ, and you will be given that microphone and that speaker set, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ instructions ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੇ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਪੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਵੇਪਰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ, ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਗੱਲ।
I think this is all about it ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਵਨੀਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ a set of guidelines, some mandates ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਬਲੀ देयर विल बी अ कंसेंट बिटवीन us and the hosting party ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, we can quit। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ ਤੇ we'll make the project very safely। so this is it। thank you Hassan ji, thank you everyone and thank you Charan Singh ji। थैंक यू हसन जी, थैंक यू वेरी मच हसन जी। ये बहुत बड़ा आपने जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो सेफ्टी के बारे में इतनी डिटेल में जानकारी देके, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही जुड़े रहो और अच्छे कामों में हमारी मदद करते रहो। इसी अरदास करते हैं आप भी हमेशा सेफ रहो, सुखी रहो, खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू हसन जी। थैंक यू सो मच सर। मे बी लास्ट 2 शब्द बोल के खत्म करता हूँ सर मेरा भी, कि ये जो सेशन था बहुत ही इंटरैक्टिव था, बहुत अच्छा लगा। प्लस कैसा है, आई होप कि मतलब यहाँ से आज ये सेशन से सब लोग कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं रिलेटेड टू सेफ्टी के चीज़ें। और होप कि हाँ अभी इकोसिक से जो जुड़ा हूँ सेफ्टी रिलेटेड काफ़ी लोग याद रखेंगे। आगे भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना कि मैं आपके लिए हमेशा साथ रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी की फतेह।